Hello everyone, myself Sagar Sharma. Today we are going to conduct the demonstration of Spider software. Today in this demonstration, I am going to explain you the utility of the software. Most probably people used to focus on the multiple scripts, used to focus on the multiple strategies, but they are unable to make the good returns from the market. So in these demonstrations, we are going to discuss how to pick the scripts in the for the intraday market, as well as swing trading, BTST, STBT, and the long term. For catching those particular scripts, what strategies you have to use, and how you have to implement those strategies on the multiple time frame. That thing we are going to discuss in this webinar. So without wasting time, coming on the software directly. So first of all, I'll explain you the basic things of the software, because until or unless the basics are not clear, you won't be able to understand the advanced part of the software. So first of all, for the trading, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग के लिए जब आप एक सिस्टम बनाते हो, so for that system there should some kind of things on which you are focusing technically as well as fundamentally. So what should be the strategies and how to implement those strategies on multiple time frame for the swing trading, for scalping, for hedging the positions, for the options trader, for intraday player. ये सारे लोगों के लिए वो strategies को कैसे फॉर्म करना है और वो strategies पर कैसे executions करना है, वो सारी चीजों पर मैं आज बात करने वाला हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्निंग में जब 9 सवा 9 बजे हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स के दिमाग में आता है वो ये है कि आज कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन सी स्क्रिप्ट्स में पोजीशंस बनानी चाहिए, क्या लॉजिक्स यूज करूं जिससे मुझे आउटपुट जनरेट होकर आएगा, प्रॉफिट्स कैसे निकालूं. सो फॉर दैट, सी मेरा सॉफ्टवेयर बहुत वास्ट है. अब ये इतने वास्ट सॉफ्टवेयर में देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स जो लोग यूज करते हैं. सबसे पहला फीचर जो सबसे पहले चार्ट्स पे प्लॉट कर लेते हैं, दैट इज द टिक क्वेरी. Tick query is the most important feature of the Spider software, because tick query helps you to identify the stocks based on the price action as well as volume. Means अगर suppose कोई एक particular person ये identify कर रहा है which are the stocks in which sudden volume rise आ रहा है, सडन वॉल्यूम राइज आ रहा है और मुझे कैसे आइडेंटिफाई होकर आएगा, मैं कैसे उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाऊं, ये आइडेंटिफिकेशंस के लिए लोग क्या करते हैं, टिक क्वेरी यूज करते हैं. टिक क्वेरी डेफिनेटली एक बहुत ही क्वालिटी फीचर है जिस पर हमको जिसके बेसिस पे हमको ट्रेड करना चाहिए. बट बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द टिक क्वेरी, मैं आपको पहले सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स बता देता हूँ. सबसे पहले तो हमारे पास कंप्लीट सेटअप होना चाहिए. तो सीक्वेंस वाइज मैं आपको लेके जाता हूँ सॉफ्टवेयर पर, कैसे फीचर्स को यूटिलाइज करना है और कैसे उस पर एग्जीक्यूशन करना है. सो सबसे पहला फीचर जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए मॉर्निंग में जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो आपने जो भी सेटअप सेट किया हुआ है उसको लोड करिए. So this is the setup on which I am personally trading, and even my personal clients are trading, and they are making the very good returns. What are the setup, how to use those particular setup, how to see the breakout, what should be the target and stop loss, that thing I am going to explain you. So first of all, जो सबसे सिंपल चीज है जो मुझे ध्यान में रखनी है वो क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ. जब भी आप चार्ट्स यूज करते हो, आपके सेटअप्स के अकॉर्डिंगली आपको सिस्टम रेडी करना है और वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही हमको पोजीशंस बनानी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द चार्ट इज द ब्लू कैंडल एज वेल एज व्हाइट कैंडल. ये दो कैंडल्स पर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है. ब्लू कैंडल इंडिकेट्स द रिवर्सल ट्रेंड on the bullish side. Whenever these blue candles are getting formed, it is giving us an indications of the buying side. Whenever the white candle is getting formed, it is giving us indications on the selling side. ये दोनों आपको indicate करके
डिफाइन करके रिजल्ट्स देंगे। बट क्या हमको ब्लाइंडली कंप्लीटली ट्रस्ट कर लेना चाहिए ब्लू एंड व्हाइट कैंडल्स पर? जहां पे भी ब्लू कैंडल फॉर्म हुआ हो क्या वहां पे ट्रेड ले लेना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कैंडल फॉर्म हुआ था, तो ब्लू कैंडल फॉर्म इंडिकेट्स द बुलिश ट्रेंड, तो यहाँ इसके बाद तो ये घूम गया। तो हमको कभी भी ब्लू कैंडल पर ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना है, इट इज जस्ट अ कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड। With the help of the blue candle confirmation, we can identify that either the trend is going to give a long breakout or not, either the indications are true or not. With that blue candle, the most important thing, अब ये blue candle तो फॉर्म हो गया, उसके साथ साथ इंट्राडे पर जब भी हम काम कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान में रखनी है, वो है tick average. So this white lines indicates tick average. So whenever the blue candle is getting formed, so the price should be trading above the tick average. This is the second criteria of the scanner. तो ये क्या करना चाहिए, ब्लू कैंडल शुड बी फॉर्म्ड अबाउ व्हाइट लाइन, मतलब टिक एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ आफ्टर दैट थिंग, जो भी हमारा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जो भी हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन मिला है, whenever the next candle is breaking the top of this particular candle, then only we have to make the position. So until or unless that top is not getting break, we don't have to make the position. So this is the criteria where we have to make the positions. Now one most important thing is there on which we have to focus, कि जब भी ये ट्रेंड, जब भी ये क्राइटेरिया बन रहा है, वो क्राइटेरिया में अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, then definitely there is a plus point for us, and from that particular zone market is going to give a breakout. Until or unless that breakout is not getting formed, अगर वो सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं है, सुपर ट्रेंड के नीचे है, तो आपको एक छोटा ही मूव जनरेट होकर आएगा, आपको एक बड़ा मूव डेफिनेटली वो क्रिएट करके नहीं देगा। बड़ा मूव कब मिलेगा, when all the criterias are getting matched and with that price is trading above the super trend, then definitely you are going to see a one sided up move. ये क्राइटेरिया के साथ हमको पोजीशंस बनानी। ये क्राइटेरिया में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हमको फोकस करना है, वो क्या है, तो नीचे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक हिस्टोग्राम ग्राफ दिख रहा है, दिस इज द हिस्टोग्राम ग्राफ। अब ये हिस्टोग्राम ग्राफ में हमको क्या ध्यान देना है, whenever the blue candle is getting formed, with that blue candle we are getting a confirmation of the histogram. Yes, so whenever this candle is getting formed, with that you can see हिस्टोग्राम पे आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए। हिस्टोग्राम का कंफर्मेशन जब आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ आपका ट्रेंड कंफर्म हो रहा है, और वो ट्रेंड के साथ आपको वहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है, एंड इवन द प्राइस इज ट्रेडिंग अबाउट द सुपर ट्रेंड, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द मोमेंटम ट्रेंड ब्रेकआउट इंडिकेटर। जहां पे भी ये कंफर्मेशन मिला, वहां से मैं आपको बोलता हूँ 10 में से 8 ट्रेड्स, 9 ट्रेड्स, 10 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल निकलेंगे, जो मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अब इस क्राइटेरिया को हमको कैसे कैच करना है, ये सारे के सारे क्राइटेरियाज एक साथ मैच होने चाहिए, और जो भी स्क्रिप्ट्स में क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं वो हमको आइडेंटिफाई होकर ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। अब इस क्राइटेरिया के साथ मैं मॉर्निंग में अगर स्कैनिंग जनरेट करूं, तो मॉर्निंग में जो गेम होता है जहां पे वॉलिटिलिटी इंक्रीज होती है, और वो वॉलिटिलिटी में कैसे मैं प्रॉफिट अर्न करके लेके निकलूं, उसके लिए क्या करना है। सो फॉर दैट वी हैव there are number of features available in Spider software from where we can catch the quality trade and we can make the good profit. उसके लिए हमको क्या करना है, तो the first most important feature is market summary. 3 फीचर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है, या फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं, दोनों दिखा देता हूं मैं आपको। जो फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है एज वेल एज इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा है, उनको क्या करना है, उनको मार्केट समरी पर ध्यान देना है। मॉर्निंग में उनको ये स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करनी है जिसमें क्वांटिटी ट्रेड्स हुआ है, जिसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है, और जो बुलिश है बेरिश साइड में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेरिवेटिव्स बता दूं, तो डेरिवेटिव्स में अगर आप देखोगे तो इस सारे फीचर्स में विच आर द स्क्रिप्ट्स
जो कि क्या है टॉप ट्रेडेड है। तो आप देख सकते हो सारे स्क्रिप्ट्स में बालकृष्ण इंडस्ट्री वाज द स्क्रिप्ट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। अब बालकृष्ण इंडस्ट्री अगर मैं लगाऊं तो आप देख सकते हो मॉर्निंग सेशन में क्या हुआ। तो पहले कैंडल पे इसने कंफर्मेशन दिया ऑफ द ट्रेंड। This was a confirmation of the trend. The same candle is giving us a close above the super trend, which is a good sign. Even it is trading above the tick average, which is a good sign. And even histogram graph is giving us a confirmation of the bullish trend. तो सारे ट्रेड्स क्या है बुलिश है। बट एक चीज यहाँ पे है जो मुझे ट्रेड लेने के लिए रोक रही है। इफ वी आर नॉट एंटर्ड अर्ली अर्ली मॉर्निंग मीन्स अगर 9:20 9:25 तक ट्रेड नहीं हुआ, अगर मैं 15 मिनट्स के कैंडल का वेट करता हूँ कंप्लीट फॉर्मेशन का, तो मेरी एंट्री बहुत लेट बनती है। क्यों? क्योंकि पहला कैंडल ही इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल जो है वो 100 रुपए के ऊपर का है। मतलब फर्स्ट कैंडल पे जो मोमेंटम आया है दैट इज मोर देन 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 1805 से 1930, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 115 पॉइंट्स। तो 115 पॉइंट का पहला कैंडल फॉर्म हो गया है, तो सेकंड कैंडल पे पोजीशंस बनाने में डर लगता है। तो ऐसे केस में क्या करना है? जब भी बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है, जब भी फर्स्ट कैंडल बड़ा कैंडल फॉर्म हो गया है, यू डोंट मेक पोजीशंस इमीडिएटली ऑन द सेकंड कैंडल। यू वेट फॉर द ट्रेंड कंफर्मेशन, यू वेट फॉर द रिवर्सल, बिकॉज whenever the first candle is getting formed with huge volatility, huge volume, वो या तो साइडवेज हो जाएगा या वहां से वो सस्टेन होके थोड़ा बहुत रिवर्सल लेगा, बिकॉज मार्केट नेवर रन्स इन द सेम डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो ये पहला कैंडल फॉर्म हुआ। अब ये पहला कैंडल फॉर्म होने के बाद रिटेलर्स को फंसाने के लिए ये मूव आया है। ये रिटेलर्स फंसेगा, यहाँ पे रिटेलर्स क्या करेंगे? पोजीशंस बनाएंगे, बिकॉज द फर्स्ट कैंडल टॉप इज गेटिंग ब्रेक, सो रिटेलर्स विल मेक द will enter in the positions, and after entering of the retailers you can see there is a रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। तो अब जब ये पोजीशंस बन गए, एक बार हम जब भी पोजीशंस में बैठते हैं उसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही देखना पसंद है, रेड देखना किसी को पसंद नहीं होता। लॉस में कोई खुद को स्टैंड नहीं करेगा। अब जब ये फॉल आया तो लोग क्या करेंगे? लोग पैनिक होकर अपने पोजीशंस काटेंगे। पैसा कौन कमाएगा? पैसा ऑपरेटर कमाएगा। पैनिक होकर पोजीशंस काटी, नीचे आया। बट मेरा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है? मेरा क्राइटेरिया अभी भी बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे साइडवेज आया एंड देन एक फॉल जनरेट होकर आया। ये जो फॉल आया यहाँ पे इसने व्हाइट कैंडल फॉर्म इंडिकेट कर दिया। अब व्हाइट कैंडल क्या इंडिकेट करता है? तो व्हाइट कैंडल इंडिकेट्स रैली टुवर्ड्स डाउन साइड। सेल का सिग्नल आ गया है, तो क्या सेल कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट समरी में ये स्क्रिप्ट्स क्या बता रही है। मार्केट समरी में क्लीन इंडिकेट कर रही है कि बालकृष्ण इंडस्ट्री इज द स्टॉक जिसमें क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है। स्टॉक जो है वो सारे क्राइटेरियाज के हिसाब से बुलिश ट्रेंड में बैठा है, and even it is trading above the super trend. So until or unless it is not moving below super trend, we are not going to sell in this position. We will just wait for the confirmation of the reversal. This is the indication of the sell side. But हमारा क्राइटेरिया अगर ये सेल होता भी तो मैं तो ये कैंडल पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं तो इसका बॉटम टूटने के बाद ही कंपलसरी सेल करूंगा, जो हमारा क्राइटेरिया था। सो ये सेल वैलिड नहीं है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। यू कैन सी अगेन वी हैव गॉट अ कंफर्मेशन ऑफ द बुलिश साइड। दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेड। मुझे ट्रेड कब करना है? कैंडल फॉर्म हुआ 1914 का हाई आप देख सकते हो 1914, यहाँ पे आपको हाई दिखेगा। 1914 is the top. Whenever this 1914 is getting break, we will enter in the position. ये 1914 कहाँ पे टूटा आप देख सकते हो। This is the candle where 1914 is getting break. Immediately on the 15 minutes, you are getting a top of 1949. कितने पॉइंट्स की रैली मिली आपको? आप कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जैक्टली 35 पॉइंट्स की रैली ऑन अ सिंगल कैंडल। अगर लॉट साइज की बात करूं बालकृष्ण इंडस्ट्री की, तो 300 का लॉट है। प्रॉफिट आप कैलकुलेट करो। सेम कैंडल पे जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, आगे क्या होगा? 500 पॉइंट फटेगा, 500 पॉइंट गिरेगा, 50 पॉइंट गिरेगा, 200 पॉइंट जाएगा, कुछ नहीं मालूम। मेरे को प्रॉफिट दिखा, मुझे टारगेट नहीं पता, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, क्या करूं? तो सेम कैंडल पर अगर स्टॉक आपको 1.5 से 2% दे रहा है इंट्राडे में 15 मिनट में, दैट इज मोर देन इनफ। यू शुड बुक अ प्रॉफिट। प्रॉफिट खा के जेब में पैसा आना चाहिए, क्योंकि ग्रीन देखना और ग्रीन बुक करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको दिख रहा है अगर 15 मिनट में 1.5 से 2% का मूव आया, यू शुड बुक अ प्रॉफिट। आइदर यू शुड बुक अ प्रॉफिट एंड इफ यू कैन टेक अ रिस्क, आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करो, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ
डिलीवरी में लेके चलिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूवमेंट आने के बाद 3 कैंडल फॉर्म हुए, 3 कैंडल साइडवेज हुआ। जैसे ही प्राइस एटीपी को क्रॉस ओवर करके एक गैप क्रिएट किया, वहां से वी हैव गॉट अनदर रैली एंड स्टॉक हैज मेड अ टॉप ऑफ 1988। 1988 का टॉप क्रिएट करके दिया। हमारी एंट्री कहाँ पे थी? 1914 के ऊपर। फ्रॉम 1914 टू 1988 दिस इज द रैली। So like this you have to generate the stocks from the market summary. जो भी stocks आपको identify होकर आ रहा है वो stocks में आपको ट्रेड बिठाना है। Another stock is Apollo Tyre. अब Apollo Tyre जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी पहले कैंडल पर बड़ा मूव आता है वो टाइम पर हमको स्टॉक स्किप करना है, क्योंकि वहां पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बोला एंड एग्जैक्टली वही हो रहा है। देखो, वैसे तो हमारा ट्रेड ही नहीं बैठता था, क्योंकि ट्रेड क्या कब बैठता है? व्हेनेवर द कंफर्मेशन कैंडल्स हाई इज गेटिंग ब्रेक देन ओनली विल एंटर इन द पोजीशन। तो ट्रेड ही नहीं बैठता। बट जैसा मैंने आपको बोला मार्केट साइडवेज हो जाएगा, मार्केट साइडवेज हो गया। देखिए, मैकडॉवेल इज द अनदर स्टॉक। सी, सुबह में किसी को मालूम नहीं था कि मैकडॉवेल इतना फटने वाला है, राइट? दिस वाज द मॉर्निंग टाइम। अगर देखो मैं आपको कैंडल ऐसे, मार्केट ऐसे दिखाऊं, सी, अगर ये मार्केट कोई देखे तो कोई पकड़ सकता है, कोई बता सकता है कि यहाँ से मैकडोवेल कुछ नहीं 15 से 20 पॉइंट फटेगा? कोई आइडेंटिफाई नहीं करके दे सकता आपको। तो कोई आइडेंटिफाई नहीं करके दे सकता। सो ऑलवेज वी हैव टू बिलीव ऑन आवर सेटअप, ऑलवेज वी हैव टू कीप आई ऑन आवर सेटअप के कहाँ पे वो ट्रेंड कंफर्मेशन दे रहा है। ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल वी हैव गॉट अ कंफर्मेशन ऑफ द सेटअप। सी, दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द सेटअप। यहाँ पे मार्केट क्या बोल रहा है? पहली चीज तो इसने मुझे दिखा दी कि मैकडॉवेल में क्वांटिटी ट्रेड्स हो रहे हैं, हैवी क्वांटिटी ट्रेड हो रहे हैं, विच इज द गुड साइन फॉर अस। अगर आप फंक्शन F12 दबाओ तो वहां पे आपको साफ इंडिकेट होकर आ जाता है मॉर्निंग सेशन में दिस वाज द प्राइस वेयर मैक्सिमम क्वांटिटी हैज बीन प्लेस्ड। सो आप देख सकते हैं 882 884 पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुआ, उसके बाद कैंडल कंफर्मेशन मिला, मतलब उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है उसने कंफर्मेशन दिया। अब कंफर्मेशन कितने पे मिला? 888 का टॉप मारा हुआ। पहली बात, ये कैंडल पे तो हमको ट्रेड ही नहीं करना है, कैंडल के बाद ही मैं कंपलसरी ट्रेड करूंगा। तो 888 का यहाँ पर हमको टॉप बना के मिला, आप देख सकते हो 888 का टॉप मार के दिया। उसके साथ साथ क्या क्या क्राइटेरिया मैच होना चाहिए? कैंडल शुड बी फॉर्म्ड अबाउट टिक एवरेज विच इज अ गुड साइन। मैकडी हिस्टोग्राम इज द शुड बी ऑन बुलिश साइड विच इज अ गुड साइन, बट हिस्टोग्राम बहुत छोटा फॉर्म हुआ है। सो this is just a confirmation on which candle we have to take the trade whenever the top is getting break. So you can see next candle is crossing the top of this particular candle, confirmation candle, and even the histogram is getting formed with a healthy bar candle, which is a good sign. And even on this candle we have got a confirmation of the super trend, which is the short indication of the bullish trend. अब आप देख सकते हो एंट्री कहां पे थी? 888.20। 888.20 से मार्केट ने वन साइडेड ब्रेकआउट दिया। 888 से नेक्स्ट कैंडल पे, मतलब विद इन हाफ एन आवर स्टॉक हैज मेड अ हाई ऑफ 904। 904 का हाई मारा, साइडवेज हुआ, अगेन न्यू हाई 909.50, देन साइडवेज, देन अगेन मेड अ न्यू हाई 911.65। डे एंड होते होते उसने 911.65 का हाई बना के दे दिया। अगर आप कैलकुलेट करो तो 888 से 911, 12 और 12 24 पॉइंट का उसने आपको कैच करके दिया। कौन से स्कैनर से? कोई स्कैनर नहीं है, मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके स्टॉक्स पिक कर रहा हूं कि कौन से स्टॉक्स में आज के दिन पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, और उसमें जब भी जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में सिर्फ मेरा क्राइटेरिया मैच होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन से प्राइस पे हमको एंटर करना चाहिए। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ complete setup, you must have confidence on your own setup which can give you a surety of the trade and the confirmation of the trade। 625 का लॉट साइज है, 24 पॉइंट का मूव, आप कैलकुलेट करो 6 6 12 12 और 3 15, ऑलमोस्ट 15,000 का प्रॉफिट सिंगल लॉट पे जनरेट हो रहा है। इस तरीके से आपको स्टॉक्स पिक करना है। और बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी मार्केट में एनसीसी जनरेट होकर आया 78.25 का स्टॉक है। अब एनसीसी जनरेट होकर आया, आप देख सकते हो एनसीसी ने भागना तो आज शुरू किया, मेरे सेटअप ने कल ही इंडिकेट कर दिया था बाइंग साइड। अब आप बोलोगे कि पहले सेल भी इंडिकेट हुआ था, बट जब सेल इंडिकेट हुआ था तब सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे थे क्या, वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे सेल आया, बट हिस्टोग्राम
ग्राफ क्या बोल रहा है, हिस्टोग्राम ग्राफ बुलिश साइड में है, तो क्राइटेरिया मैच ही नहीं हुआ, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा. We compulsory have to enter in this trade only when all the criteria are getting met. तो यहाँ पे मैच हो रहा है क्या? So first of all, the candle is giving us a confirmation. ठीक है, but criteria अभी भी नेगेटिव है, ट्रेड नहीं करूंगा. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कैंडल बुलिश साइड आ गया है, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, एंड इवन द हिस्टोग्राम ग्राफ हैज जस्ट टर्न ऑन द बुलिश साइड. सो वी विल स्टिल वेट फॉर द कंफर्मेशन. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कैंडल ने ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, बट आप यहाँ पे देख सकते हो वीक कैंडल है, कैंडल में ताकत नहीं है, तो स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन. हिस्टोग्राम कैंडल इज कंटिन्यूसली गिविंग अस अ कंफर्मेशन ऑफ द बुलिश साइड, क्योंकि दो कंटिन्यूस कैंडल उसने क्या किया है, बुलिश साइड में फॉर्म कर दिया है. थर्ड कैंडल हैज गिवन अस अ क्लोजिंग अबाउ द कंफर्मेशन कैंडल. ये कैंडल पे क्लोजिंग मिल गया है विच इज अ प्लस साइड. यहाँ पे हिस्टोग्राम ने हेल्दी कैंडल प्रीवियस 3 से 4 कैंडल्स के कंपैरिजन में क्रिएट कर दिया है. So this is the confirmation candle. On this candle we will make the position somewhere around 72.40. अब 72.40 पे कंफर्मेशन मिला, उसके बाद सेम डे पर 73.50 उसने क्रिएट करके दी. बट आप बोलोगे सर स्टॉक्स में क्वांटिटी ट्रेड तो आज होना स्टार्ट हुआ, कल मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो ये पूरे सेटअप का आपको डायरेक्टली स्कैनर भी मैं बना के दे दूंगा, जिसमें आपको ऑटोमेटिक स्कैन होकर आएंगे कि कौन से स्टॉक्स आपको करंट कैंडल पर ब्रेकआउट दे रहे हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स. बट अगर मुझे एनसीसी पे आज ट्रेड करना होता तो मैं कैसे करता? तो उसके लिए ध्यान देना, मॉर्निंग में मुझे डिफाइन होकर आ गया कि एनसीसी में क्वांटिटी ट्रेड्स हो रहा है, अच्छा है, स्टॉक भाग रहा है. मैंने सुबह सुबह लगाया तो मुझे एक चीज दिख गई कि ओपन और लो सेम है एनसीसी का, विच इज द गुड साइन. पहला क्या दिखा मुझे कि मेरा सेटअप ऑलरेडी बाइंग जोन में बैठा हुआ है. सेटअप ऑलरेडी बाइंग जोन में बैठा हुआ है. स्टॉक का जो ओपन है दैट इज अबाउ यस्टरडेज हाई, विच इज द सेकेंड कंफर्मेशन. स्टॉक का ओपन ही कल के हाई के ऊपर हुआ है, वो सेकेंड कंफर्मेशन. अब ये मुझे कोई बता नहीं रहा है, ये मेरा मार्केट को देखने का तरीका ही ऐसा है कि मैं फटाक से ये सारी चीजें एनालिसिस कर पा रहा हूँ. तो स्टॉक्स का ओपन ही कल के हाई के ऊपर हुआ है, दैट इज द सेकेंड कंफर्मेशन. वो थर्ड कंफर्मेशन क्या है? थर्ड कंफर्मेशन ये है कि स्टॉक्स का ओपन और लो सेम है. ये भी क्राइटेरिया एक है कि व्हेनेवर द ओपन एंड लो इज इक्वल, जब तक वो टूटता नहीं है तब तक उसका ट्रेंड बुलिश साइड होता है. सो दिस इज द थर्ड कंफर्मेशन. हमको ट्रेड कब लेना है? हमको ट्रेड बेसिकली यहाँ पे ही लेना चाहिए था, बट ये तो मिस हो गया. आज के दिन पे कहाँ पे ट्रेड लो? सो द ट्रेंड इज ऑन द बुलिश साइड. माय सेटअप इज सेइंग कि मार्केट इज गोइंग टू गिव अस अ मोर अपसाइड रैली. मुझे वो कैंडल पे बैठना है जहां पे भी प्राइस टिक एवरेज के ऊपर निकल जाता है. आज के टिक एवरेज के ऊपर प्राइस निकल गया, वी विल मेक द पोजीशन. सी यहाँ पे उसने कोशिश की बट क्लोज नीचे आके दे दिया, बट ओपन लो अभी भी सेम है, कल के हाई के ऊपर मार्केट है, ट्रेंड बुलिश है. सेकंड कैंडल ने क्या किया? सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया. किस चीज का? तो टिक एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी, दैट इज द कंफर्मेशन. Definitely we will enter in the position whenever the high of this candle is getting break, which is the हाई क्या है? 74.95. 74.95 ब्रेक हुआ. यू कैन सी फ्रॉम 74.95 टू 78.40, ऑलमोस्ट 3.5 पॉइंट की रैली. 70 रुपए के स्टॉक में 3.5 पॉइंट की रैली बहुत ह्यूज होती है. ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 5% हो गया. क्वांटिटी ट्रेड होता तो वन साइडेड रैली क्रिएट होकर आप एंजॉय करते. सो दिस इज द वे ऑफ पिकिंग द पर्टिकुलर स्टॉक्स. लोगों को सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है अगर स्टॉक्स डिफाइन नहीं हो रहा तो, कि मैं कौन सा स्कैनर यूज करूं, मैं कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करूं, कैसे स्टॉक्स को पकड़ूं. जस्ट अ मिनट. तो उस केस में ऐसे क्राइटेरिया में मैं आपको इतने सारे मेथड्स बता दूंगा जिससे आप मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन में इजीली स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके एक क्वालिटी मूव मॉर्निंग के सेशन में ही पूरा आप लेकर बैठ जाओगे. क्योंकि वी डोंट हैव टू रन बिहाइंड द मल्टीपल ट्रेड्स. लोग क्या करते हैं, एक एक रुपए का मूवमेंट एंजॉय करेंगे, दिन में 10 ट्रेड मारेंगे और एट द एंड ऑफ द डे 5,000 कमा लिया. अरे 5,000 कमाने के लिए आपको 10 ट्रेड करना पड़ गया. दैट इज नॉट द वे ऑफ ट्रेडिंग. ट्रेडिंग का मेथड क्या होता है? ट्रेडिंग का मेथड ये होता है कि यू आर कैचिंग अ सिंगल स्टॉक विद अ ह्यूज रैली.
एक सिंगल स्टॉक्स आपको परफेक्ट लेवल पर एंट्री के साथ कैच होकर मिलना चाहिए, बड़े रैली के साथ आप उसमें पोजीशंस बनाओ। अब सेम एनसीसी में आपको डेली पर बता दूं, ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ 15 मिनट्स पे चलता है, जो भी टाइम फ्रेम पे आपको मिला आप पोजीशंस बना, आपको वहां पे ह्यूज रैली मिलेगी। देखो एनसीसी ने अगर डेली कैंडल की बात करूं, डेली कैंडल है, डेली कैंडल पर कंफर्मेशन दिया था, दिस वाज द कैंडल वेयर वी हैव गॉट अ कंफर्मेशन। ये कैंडल का ब्रेकआउट मिला, यू कैन सी वन साइडेड रैली। सिंस the stock has given us a confirmation on the level of 61.75. From 61.75, the stock is continuously trading above the bullish trend. All the criteria are getting matched on those particular candle, and we have seen a one side rally, and today it has made a high of 78.50. So this is the way of picking the stocks. This is the way of catching the stocks at the right time, at the right level, with the right target, with the right stop loss. अब जो डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहा है उसके लिए स्टॉप लॉस क्या बनता है? So strictly आपको स्टॉप लॉस, either you have to keep the stop loss based on the swing indicator, based on the Fibonacci indicator. मैं पर्सनली स्विंग फिबोनाकी या फिर ये दो यूज करता हूँ, या फिर मुझे अगर स्टॉक्स का ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है तो मैं इसको प्रीवियस कैंडल के बॉटम को ही स्टॉप लॉस बना के चलता हूँ। Whenever we are entering on this level for the longer period, this will become the stop loss. अब जैसे ही मैं प्रॉफिट में आया, मैं अपना क्या करूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलूंगा। तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का भी यूज ले सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं पर्सनली इसमें कैसे ट्रेड करता हूं। मुझे फोकस 15 मिनट पे ही करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है कभी भी तो, बट मैं इसके दो चार्ट ओपन करूंगा, इसको कंट्रोल टी मार के रखूंगा, आपको मैं दिखा दूं। ठीक, पहला कैंडल डेली कैंडल पर है, पहला चार्ट डेली कैंडल पर है, सेकंड चार्ट अगर आप देखोगे तो 60 मिनट्स पर है, थर्ड चार्ट आपको 15 मिनट्स में मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ दिख गया, 15 मिनट पे आपको साफ साफ दिख गया, ऑलरेडी बाइंग जोन में था, आज के दिन पे फ्रेश ब्रेकआउट दिया एंड बुलिश ट्रेंड दिया। 60 मिनट्स पे क्या बोल रहा है, तो कमिंग टू द 60 मिनट्स, यू कैन सी ऑन 60 मिनट्स आल्सो इट हैज गिवन अ कंफर्मेशन yesterday only, somewhere around 115, you can see on 115 it has given a confirmation, all the criteria are getting matched on the 60 minutes also. So on 60 minutes also it is telling us for the buying in to enter on a buying side. What is happening on the daily candle? So you can see on daily candle stock is already on the bullish side, but it is trading below super trend. आज के दिन पे ओपन लो सेम विद द गैप अप ओपनिंग एंड विद द सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट। सारे टाइम फ्रेम मुझे बोल रहे हैं ट्रेड कर, तो मैं क्यों बैठूंगा, आंख बंद करके आपको पोजीशंस बनानी। इस तरीके से आपको स्टॉक्स एनालिस करना आना चाहिए। अब तक मैंने सॉफ्टवेयर के सिर्फ एक फीचर्स को एक्सप्लेन किया है, सिर्फ एक फीचर को, एंड कितने सिंपल वे में स्टॉक्स कैसे पिक करना है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फीचर, ये हो गया मार्केट समरी से। every feature is most यूनिक फीचर इन स्पाइडर सॉफ्टवेयर। आपने अगर एक फीचर को भी अच्छे से यूज करना सीख लिया ना, आपको 50 चीजों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं। वन फीचर इज इनफ टू मेक द वेरी गुड रिटर्न्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। बट व्हाट पीपल्स आर डूइंग, पीपल्स आर रनिंग ऑन मल्टीपल स्कैनर्स, रनिंग ऑन मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, और एक स्ट्रेटेजी को भी प्रॉपरली यूज नहीं करते, इस वजह से पैसा नहीं बनता। आप हर एक फीचर्स को प्रॉपर सेटअप के साथ काम करो, पैसा आप एक्सपेक्ट नहीं करते वैसा बनेगा। उसका लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द अनदर फीचर, मार्केट समरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इंडेक्स पुलर्स एंड ट्रैगर्स, दिस इज द सेकंड फीचर which is helping us to identify the trend of the stock. Again I am closing one chart, दो चार्ट इनफ है हमारे लिए। मैं क्या करूंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा। फॉर एग्जांपल आज के दिन पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखते हैं। सी साइडवेज था, उसके बाद ब्रेकआउट है। अब साइडवेज था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, ये तो मुझे ठीक है मालूम पड़ गया, बट ब्रेकआउट क्यों आया ये मुझे नहीं मालूम। बहुत लोग होते हैं टिप्स पे काम करने पे बिलीव करते हैं, कोई टिप दे दे हमको डायरेक्टली पका पकाया आम दे दे मैं खा लूं, बट आम अंदर से अगर कच्चा निकला, आम अंदर से अगर खट्टा निकला तो उसको ब्लेम किसको करोगे, खाना तो आपको ही है ना।
तो वो आम मीठा है कि खट्टा है वो आपको काटने से पहले ही पता कर लेना है कि ये आम मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। वो कैसे पता करोगे? सो फॉर दैट यू मस्ट बी अवेयर विद द सेटअप्स एंड द लॉजिक्स। आप क्यों वो पर्टिकुलर ट्रेड में ट्रेड कर रहे हो, आप अपना हार्ड एंड मनी पैसा लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो? अगर वो बाइंग करना है तो क्या लॉजिक के साथ बाय करना है? मैं पोजीशंस बना रहा हूं तो व्हाट शुड बी द रिस्क रिवॉर्ड, वो रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपके टारगेट्स क्या सेट होंगे, स्टॉप लॉस क्या सेट होंगे, ये सारी चीजें पहले से डिफाइन होनी चाहिए। अब बैंक निफ्टी भागा, भागने के पीछे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन था, कौन से स्क्रिप्ट ने उसको भगाया और कौन से स्क्रिप्ट का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये मुझे डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करूं? सो यू कैन सी बैंक निफ्टी में जो वन साइडेड मूव आया है 361 पॉइंट्स का, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है उसको बुलिश ट्रेंड में लेके आने का? सो यू कैन सी आईसीआईसीआई बैंक इज द स्टॉक out of the complete banking sector which helped बैंक निफ्टी with 222 points ऊपर चढ़ाने में। बैंक निफ्टी को 360 पॉइंट की रैली में से 222 पॉइंट की रैली आईसीआईसीआई बैंक ने दिलवाई। ICICI Bank is the stocks because of Bank Nifty has moved 360 points. Now बैंक निफ्टी को ICICI बैंक को मैं चार्ट पे लगा देता हूँ। ध्यान देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना। बैंक निफ्टी तो वन साइडेड भाग गया, लाइव दिखाता हूँ आपको। बैंक निफ्टी वन साइडेड भाग गया, बट चार्ट क्या बोल रहा है? आईसीआईसीआई बैंक ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, पहले कैंडल पे ही इंडिकेशन आ गया था। 16 मिनट्स के कैंडल, 15 मिनट से बात करना स्टार्ट करते हैं। चलो see 15 minutes पे clear cut indication है, this was the candle where we have got a confirmation and we have to make the position above 907.90. So on this candle our position will get placed from 907.90. अब 907.90 के बाद मार्केट सस्टेन हो गया, थोड़ा सा गिरा भी बट एग्जैक्ट सुपर ट्रेंड को टच किया एंड रिवर्सल। अगर यहाँ पे रिवर्सल आ जाता, ट्रेड घूम जाता, व्हाइट कैंडल फॉर्म हो जाता, वी हैव टू स्ट्रिक्टली पोजीशंस काटनी है, स्टॉप लॉस बेयर करना है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, एग्जैक्ट सुपर ट्रेंड का सपोर्ट लिया बिकॉज दिस कंफर्मेशंस वी आर गेटिंग ओनली बेस्ड ऑन द कंफर्मेशन ऑफ मल्टीपल ट्रेंड ब्रेकआउट। तो ये जनरेट तभी होकर आएगा जब वो शॉर्ट ब्रेकआउट दे देगा। सो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज चला। क्यों साइडवेज चला? क्योंकि एट टिल दैट टाइम इट ये पर्टिकुलर स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक बैंक निफ्टी को ऊपर भागने में completely support नहीं कर पा रहा था। On the candle, Bank Nifty has got break and even it has given us a closing above yesterday's high. You can see ICICI Bank has given a reversal confirmation. हमको ट्रेड ऑलरेडी बैठ चुका है 907.90 के ऊपर, मतलब 908 909 के आसपास ट्रेड बैठेगा। यू कैन सी जैसे ही बैंक निफ्टी में मूव आना स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक में भी मूव आएगा। एक्चुअली बोला ये जाएगा जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक में मूव आना स्टार्ट हुआ वैसे ही बैंक निफ्टी भी भागे, बिकॉज इसमें मूवमेंट आया तब जाके बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक हैज गिवन अ 222 पॉइंट contribution to the bank nifty to move on the upside. तो जैसे ही वो 908 का लेवल ब्रेक किया ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स की रैली वहां पे क्रिएट करके दे दी। व्हाट इज द लॉट साइज? 1375। So this is the way of catching the right stocks with the confirmation of your setup. Setup में same use कर रहा हूँ, feature we are using different. So I am just showing you that there are multiple ways to catch the perfect stock and make the money from the market. कोई भी टाइम फ्रेम, लोग बोलते हैं कि 9 से 10 के बीच में ट्रेड करो, 2 से 3 के बीच में ट्रेड करो, बीच का मार्केट बोरिंग होता है, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी टाइम पे ट्रेड करो, जहां पे भी सेटअप कंफर्मेशन दे रहा है आपको आपके सेटअप पे ट्रस्ट होना चाहिए। सेटअप इतना हेल्दी होना चाहिए कि इट इज गिविंग यू अ शॉर्ट इंडिकेशन, शॉर्ट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द ट्रेंड एंड यू आर मेकिंग द पोजीशंस। अनदर स्टॉक इज SBI। सी कंफर्मेशन मिला, 64 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किसका है? SBI बैंक का है बैंक निफ्टी को 360 पॉइंट चढ़ाने। कंफर्मेशन मिला आपको, अब कंफर्मेशन बहुत लेट मिला, 4:30 बजे मिला 600 के प्राइस पर, जो कि ब्रेक हुआ 3 बजे के कैंडल। 600 के प्राइस पर ब्रेक होने के बाद, अब जैसे ही ब्रेक होने के बाद ऑलमोस्ट हमारे हाथ में गिन के 15 मिनट ही तक, क्योंकि 350 को इंट्राडे पोजीशंस कवर हो जाती है।
बट आप देख सकते हो ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूस स्टॉक्स अप मूव में ही जा रहा है एंड इवन उसने क्लोजिंग भी 602 के आसपास आके दिया है, तो स्टॉक्स हमारा प्रॉफिट में ही है, 1500 का लॉट साइज है. So like this you have to generate pick the stocks which is giving a maximum contribution to the index. Same मैं आपको निफ्टी दिखा दूं. See which is the stocks which is helping Nifty to get into the bullish side from the bearish. So you can see again ICICI Bank has given a 28 point contribution to get on the bullish side. आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे पहले निफ्टी का चार्ट लगा दूं, सी मॉर्निंग में नेगेटिव थी, नेगेटिव होने के बाद अगर निफ्टी पर अगर हम ध्यान दें तो ये पूरा रिवर्सल आया. अभी रिवर्सल आया जो जनरेट होकर आया है, सेम मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया, कंफर्मेशन मिला, ब्रेकआउट हुआ, सेम निफ्टी में भी मूव आया, बैंक निफ्टी में भी मूव आया, दोनों तरफ हमको साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द ओनली स्टॉक विच इज हेल्पिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ द इंडेक्सेस टू मूव अपसाइड. तो मैं क्यों पोजीशन नहीं बनाऊंगा, डेफिनेटली वो प्राइस के ब्रेकआउट पे हमको कंपलसरी पोजीशंस बनानी है. देन अनदर स्टॉक इज इन्फी. सी इन्फी ऑलरेडी बुलिश जोन में है, 2 दिन पहले ही इंडिकेशन आया, तब से कंटिन्यूसली वन साइडेड भाग रहा है. इवन मैंने मेरे पेड क्लाइंट्स को भी बोला था इन्फी बाइंग करवाया है हमने ऑलमोस्ट 1560, 1570, 1575 के लेवल्स पे एंड कंटिन्यूसली इट इज राइजिंग ऑन द बुलिश साइड. आज मुझे उसने साफ साफ दिखा दिया कि मार्केट को नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में 9 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किसका है, निफ्टी का है, पॉजिटिव साइड. अब ये जो 9 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है हमको कब ट्रेड करना है, सो इट इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन द bullish side. We just have to see के where the candle, जैसा मैंने अभी आपको previously भी बताया, इसमें हमको क्या करना है, ठीक एवरेज लगाना है. See, we just have to wait for the confirmation of the candle which is giving us a close above the tick average. This is the confirmation of the candle. Until or unless price is not coming below tick average, you have to hold the position and you can see the rate. पहला टारगेट क्या होगा, अब इस केस में पहला टारगेट सुपर ट्रेंड बनेगा. क्यों, क्योंकि स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो सुपर ट्रेंड. जैसे ही सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट आता है यू कैन सी वन साइडेड रैली. सो दिस इज द वे ऑफ पिकिंग द स्टॉक्स. अगर मैं सुबह की बात करूं, सुबह मार्केट नेगेटिव था, तो कौन सा स्टॉक्स है जिसने सबसे ज्यादा निफ्टी को नीचे गिरने में कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो है रिलायंस. सो यू कैन सी in Reliance we have got a confirmation of the downtrend in the morning only. ये कैंडल पर व्हाइट कैंडल बना था, सेल इंडिकेट हुआ था, आप देख सकते हो 2610 के आसपास. 2610 पे जैसे ही सेल इंडिकेट हुआ, सुपर ट्रेंड का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो पीक एवरेजेस एंड इवन द हिस्टोग्राम इज ऑन द सेलिंग साइड. जैसे इसका लो ब्रेक होता है 2610, यू कैन सी वी हैव गॉट अ वन साइडेड डाउन ट्रेंड ऑफ द 15 पॉइंट्स and even the stock has made a bottom of 2590. 250 का लॉट साइज, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स की रैली, 5000 प्रॉफिट ऑन द सिंगल. अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के वो 2590 ही गया, ज्यादा मूव नहीं जा पाया. अब यहाँ पे देख, वो गेम पर मैं बाद में आता हूँ, दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑप्शंस एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस. सो वो पार्ट पे मैं बाद में आता हूँ. सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग ट्रेडिंग, दिस इज द वे ऑफ catching the stocks at the right time. Another feature which I would like to explain you, I am going to explain 3 features from the report menu, and these 3 features are more than enough to make the very good returns with the help of my setup, with the help of setup which I am explaining you. So another feature on which you have to focus is group analysis. ग्रुप एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हो, ग्रुप एनालिसिस करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंप्लीट सेगमेंट में विच इज द ग्रुप, विच इज द सेगमेंट विच इज गिविंग अस अ मैक्सिमम रिटर्न्स, जिस सेगमेंट्स के ग्रुप्स विच जो सेगमेंट्स के स्टॉक्स मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी ले लिया पूरा. अब ये out of all the segments, which is the segment which is giving us a maximum return. So you can see oil gas is the segment जिसमें क्या है, 15 में से 15 एक्टिव स्क्रिप्ट्स है और जिसमें से 87% स्क्रिप्ट्स क्या है, पॉजिटिव साइड क्लोज हुई है.
अब इस पे क्लिक किया, सो यू आर गेटिंग द स्क्रिप्ट्स व्हिच इज मूविंग ऑन द अपसाइड। अब सारे पूरे ऑयल गैस में आप देख सकते हो गुजरात गैस लिमिटेड इज द स्टॉक्स व्हिच इज गिविंग अस अपसाइड रैली। गुजरात गैस में लगाऊंगा। अब गुजरात गैस जैसे ही मैंने लगाया मेरे सेटअप ने यहाँ पे बाइंग इंडिकेट कर दिया था। अब बाइंग इंडिकेट किया तो क्या मेरे सारे क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं? देन यस, हिस्टोग्राम इज ऑन द बुलिश साइड, कैंडल इज giving a confirmation, price is already trading above the super trend and even it is above the tick average which is the plus point. डेली पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। डेली पर भी कंफर्मेशन मिल गया, बुलिश साइड है, ठीक है। 60 मिनट्स पे क्या है, तो डेली पे बुलिश है तो डेफिनेटली 60 पे भी बुलिश ही होगा। यस, सारे टाइम फ्रेम पे बाइंग इंडिकेट हो रहा है, बट बाइंग होने के बाद इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, ठीक है। मार्केट साइडवेज गया, वी विल वेट फॉर द पोजीशन, वी विल नॉट मेक द पोजीशन, वी विल वेट फॉर द एंट्री। यहाँ पे सेल इंडिकेट होगा, आ गया। क्या सेल करूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हिस्टोग्राम क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, इवन प्राइस इज नॉट ट्रेडिंग बिलो द सुपर ट्रेंड and everything is against as per the criteria. Again we have got a confirmation of the bullish side, ठीक है। बाइंग साइड रैली मिली, इंडिकेशन आया। हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे? जैसे इसका टॉप ब्रेक करता है 494 is getting break on this candle and you can see one sided rally from 494 to 515. So this is the moment, this is the way of identifying stocks at a right time. अब आप बोलोगे सर ये तो आप मार्केट खत्म होने के बाद दिखा रहे, 6% की रैली आ गई तब तो तब आप पकड़ रहे हो। यही चीज आप एक्शन रिप्ले में लाइव मार्केट में देख सकते हो। 6% की रैली अभी आई तो मॉर्निंग में 1%, 2% की रैली पे ऑलरेडी आपको मिलेगा क्योंकि गैप अप हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, 6% अभी हुआ ना तो बाकी के स्टॉक्स में भी 2%, 3%, 4% क्लोजिंग पर आया है। सो इट इज कंपेयरिंग, इट इज द लाइव मार्केट सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर कि हो गया फिर आपको दिखाएगा। लाइव मार्केट में स्कैन करके देता है एट द मोमेंट विच इज द स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मूव आया है, वो इंडिकेट करके देगा। और ये गुजरात गैस लिमिटेड मॉर्निंग से कंटिन्यूस आपको इंडिकेट कर रहा है एंड दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द इंडिकेशन के उसने सेटअप्स के अकॉर्डिंगली भी कंफर्मेशन दिया एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल वी हैव entered in the positions. So this is the way of picking the right stock. Another stock is IGL. See, IGL आया, ये सेटअप कंफर्मेशन मिला, सेटअप कंफर्मेशन के बाद इमीडिएटली पोजीशन बनी 420 के ऊपर। ये पोजीशन बनी 420 का स्टॉक आपको 438 का बॉटम बना के देता है। कोई पेड चैनल, कोई एनालिस्ट, कोई इतना क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई आपको नहीं करके दे सकता, क्योंकि आपको आपका सेटअप ही एक हेल्प करेगा परफेक्ट स्टॉक्स पिक करने में, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लॉट साइज की बात करें तो 1375 का लॉट साइज है आईजीएल का। You can calculate the profits 420 से 438, 18 into 1375 you can calculate। अब टॉप टू बॉटम कोई भी पॉइंट टू पॉइंट रैली एंजॉय नहीं कर सकता, बट आपको टारगेट टू टारगेट ट्रेड करना है। पहला टारगेट आपका क्या बनता था? 422, देन 430, 428 से 430। क्यों 430? क्योंकि 430 पे मैक्सिमम हुआ है, बिल्डअप हुआ है। देन 437 एग्जैक्ट देखो पॉइंट टू पॉइंट उसने टारगेट टू टारगेट ट्रेड किया, 437 को ट्रिगर किया एंड फिर रिवर्स। So this is the way of picking the stocks with the help of the multiple features. So these three features you have to use on the day for the daily trading, for the intraday trading. इसमें जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो मॉर्निंग में आइडेंटिफाई करो, अपने सेटअप्स के साथ रेडी रहो, वो सेटअप्स के अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना है। डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छा खासा रिटर्न्स निकलेगा, जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। So three features I have explained you. First is market summary, second is index pullers and draggers, and third one is group analysis. So these three features you have to use for the intraday trading. अब सेटअप की बात करूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा चलता है, स्टॉक्स में और फ्यूचर्स में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी पे कैसा चलता है देखें तो निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। सी, सुबह क्या था मार्केट में? नेगेटिव ट्रेंड था, ठीक है। ट्रेंड क्या था? नेगेटिव था। नेगेटिव ट्रेंड के बाद सेटअप ने कंफर्मेशन कहां पे दिया? सेटअप ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, क्योंकि सेटअप क्या करेगा, सेटअप कभी भी आपको तभी ही कंफर्मेशन देगा जब वो सारे क्राइटेरियाज में मैच करके ट्रेंड कंफर्म करेगा कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो वहां से कंफर्म बुलिश या बेरिश ट्रेंड आएगा ही आएगा। until or unless that levels are not getting met, it is not going to give you a confirmation of the
ट्रेंड। तो आप देख सकते हैं, आप बोलोगे कि मॉर्निंग में क्यों नहीं आया, सेल तो यहाँ आना चाहिए था ताकि मूव एंजॉय होता, बट ऐसा नहीं है। वो सारे क्राइटेरियाज मैच करेगा तभी कंफर्मेशन देगा। तो देखो यहाँ पे आके उसने कंफर्मेशन दिया, हमको ये कैंडल का बॉटम ब्रेक होगा तो ही पोजीशन बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी है। आप देख सकते हो कैंडल का बॉटम ब्रेक हुआ नहीं हुआ, स्ट्रिक्टली विल नॉट एंटर इन द सेल साइड। नेक्स्ट कैंडल पर इमीडिएटली बाइंग सिग्नल आ गया। अब देखो एग्जैक्ट बॉटम पर बाइंग इंडिकेट कर दिया उसने, 18303 पर बाइंग इंडिकेट कर दिया, स्ट्रिक्टली यहाँ पे हमारा ट्रेड बैठ जाएगा। अब ये जो ट्रेड बैठेगा वो ट्रेड बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक टारगेट, एक मिनिमम टारगेट के लिए बैठेगा। तो छोटा स्टॉप लॉस क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो कैंडल कंफर्मेशन है उसका प्रीवियस कैंडल विल बिकम द स्टॉप लॉस। तो 18282 विल बिकम द स्टॉप लॉस। टारगेट क्या बैठेगा, तो पहला स्ट्रिक्ट टारगेट आपका सुपर ट्रेंड लाइन बैठ जाएगी, बिकॉज स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो सुपर ट्रेंड। तो अंटिल और अनलेस इट इज नॉट मूविंग अबव सुपर ट्रेंड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द ह्यूज अपसाइड रिलीज। तो आप देख सकते हो पहला एग्जैक्ट सुपर ट्रेंड तक उसने अच्छा खासा टाइम कंज्यूम किया ब्रेकआउट देने के लिए, प्रॉफिट में था स्टॉक्स, बट वन साइडेड रैली नहीं आ रही। एंड जैसे ही उसने कंफर्मेशन दिया, निफ्टी का ब्रेकआउट मिला, जैसे ही उसने कंफर्मेशन दिया, 3 कैंडल में वो रैली मिली जो मॉर्निंग से ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे में नहीं मिली थी, वो 45 मिनट्स में रैली दी थी। एंड यू कैन सी स्टॉक हैज गिवन अस अ कंफर्मेशन ऑन द लेवल ऑफ 13303। 13303 से 427, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 120 प्लस पॉइंट की रैली इन द निफ्टी। So this is the way how setups works. On the another side, Bank Nifty already bullish zone में। See, जिसको सेटअप पे भरोसा हो वो इस तरीके से पैसा बनाते हैं। मेरे सेटअप ने यहाँ पे ही बाइंग इंडिकेट कर दिया था, अगर आप देखो तो 41,572, वहां से वो कंटिन्यूस बाइंग साइड में ही है। इंट्राडे में कुछ भी हो, भले रिवर्सल आए, कुछ भी हो, एक रिवर्सल्स आए, इंट्राडे में कुछ भी आए, बट until और unless we are not getting the confirmation of the reversal trend, we are not going to book the we are not going to close the trade. तो आप देख सकते हो ये कंफर्मेशन मिला, कंफर्मेशन के हिसाब से नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग, देन साइडवेज, देन अनदर रैली, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड दिस इज द मूव साइड। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो डेफिनेटली आपको कंफर्मेशन मिला होगा। देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गए तो आप देख सकते हो पहला ट्रेड इसने मॉर्निंग मॉर्निंग में बाय बोल दिया था, बट उसके बाद ट्रिगर नहीं हुआ, साइडवेज गया। देन वी हैव गॉट अ कंफर्मेशन ऑन दिस कैंडल, यहाँ पे हमारा ट्रेड बैठता था। पहले तो सेल का आया, सेल बैठेगा नहीं क्योंकि स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउ मोमेंटम, सॉरी अबाउ सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड के ऊपर है तब तक मैं ट्रेड नहीं बिठाऊंगा सेल का। यहाँ पे कंफर्मेशन मिला बाइंग साइड का, तो डेफिनेटली इस कैंडल पे ट्रेड बैठेगा। आप देख सकते हो ये ट्रेड बैठा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल लो। ट्रेड बैठने के बाद एक छोटा सा मूव आया, फिर साइडवेज हो गया, बस स्टॉप लॉस कहीं भी ट्रिगर नहीं हुआ। अगेन दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द बुलिश ट्रेंड। ये कैंडल पे डेफिनेटली ट्रेड नहीं बैठेगा बिकॉज स्टिल स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउ सुपर ट्रेंड। दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट this is the second confirmation of the bullish trend, and you can see जैसे ही ब्रेक हुआ एंड स्टॉक जैसे ही कल के हाई के ऊपर निकला, वन साइडेड अपवर्ड रैली। सो सेटअप जो मैंने आपको बताया वो सेटअप के साथ स्टिक रहो जब तक रिवर्सल नहीं आता। यू हैव टू होल्ड द पोजीशन इमीडिएटली या फिर थोड़ा लेट, वो आपको मूवमेंट क्रिएट करके देगा ही देगा। एंड दिस इज द लाइव एग्जांपल्स ऑन इंडेक्स एज वेल एज स्टॉक्स एज वेल एज फ्यूचर स्टॉक्स। So this is the way how index and the rest of the things works. इसी को मैं आपको लंबे टाइम फ्रेम पर बताऊं तो ये वो कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको स्कैनर्स देता हूँ। टिक क्वेरी की बात कर रहे थे जब भी हमने ये वेबिनार स्टार्ट किया था, तो टिक क्वेरी में ये सेटअप को कैसे यूज करना है, टिक क्वेरी में ये सेटअप आपको कैसे हेल्प करेगा स्टॉक्स फाइंड आउट करने में, स्टॉक्स पिक करने में, वो मैं आपको बता देता हूँ। So basically टिक क्वेरी क्या करता है, टिक क्वेरी हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स जिसमें हाई वॉल्यूम कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, अच्छा खासा प्राइस एक्शन हो रहा है और क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग हो रही है, वो स्टॉक्स फाइंड आउट करने में टिक क्वेरी हेल्प करता है। यू कैन यूज टिक क्वेरी सिंस मॉर्निंग फ्रॉम 9:15 टू 3:30, 9:15 से 3:30 तक जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं आप पकड़ सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 9:30 के बाद के स्टॉक्स पकड़ो, पहले 15 मिनट की वॉलिटिलिटी स्किप होने दो क्योंकि उसमें नॉन ट्रेंडी स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई होकर आते हैं। So we have to
कैच द स्टॉक्स जो 9:30 के बाद आपको जनरेट करके दे। अब जो भी स्टॉक्स मुझे कंफर्मेशन के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं वही स्टॉक्स में मैं काम करूं। सी अंबुजा सीमेंट इज द फर्स्ट स्टॉक विच इज कमिंग अगेन एंड अगेन। अब अंबुजा सीमेंट ने पहले यहाँ पे इंडिकेट कर दिया था, आप देख सकते हो दिस वाज द कंफर्मेशन एंड फ्रॉम द ब्रेकआउट ऑफ दोस कंफर्मेशन यू कैन सी वन साइडेड अपवर्ड रैली वी हैव गॉट इन द अंबुजा सीमेंट। देन अनदर स्टॉक इज द मदरसन सुमी। अब ये भी पहले से इंडिकेट है, वहां से कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, ये बहुत पहले के इंडिकेशन आ रहे हैं। मैं आपको फ्रेश आज के इंडिकेशन, कल के इंडिकेशन के बेसिस पे दिखाता हूँ। सी हीरो मोटोकॉर्प इज द स्टॉक, पहले तो कल सेल इंडिकेशन आया था, अब उसका बॉटम ब्रेक नहीं हुआ तो वी आर नो वी वांट, मतलब ट्रिगर ही नहीं हुआ, वहां पे सेल इंडिकेट बनता ही नहीं। देन इमीडिएटली हमको बाइंग का सिग्नल मिला, बाइंग के सिग्नल के बाद ब्रेकआउट आया एंड ऑन द नेक्स्ट डे यू कैन सी वन साइडेड अपवर्ड रैली। ये सारे मैं आपको बुलिश ट्रेंड के स्टॉक्स बता रहा हूँ। देन गुजरात गैस लिमिटेड देखो, अगेन वहां पे भी हमको आइडेंटिफाई होकर आया था, अभी मैंने आपको फीचर्स बताए थे, अगेन इट इज कमिंग ऑन द टिक क्वेरी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वन साइडेड आप देख सकते हो अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, टिक क्वेरी में भी उसने कंफर्मेशन दे दिया कि स्टॉक इज गोइंग टू मूव अपसाइड ओनली, देन डेफिनेटली मैं ट्रेड बिठाऊंगा ना। सारी जगह मुझे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि स्टॉक्स अपसाइड जाएगा तो मैं डेफिनेटली पोजीशन बनाऊंगा। मुथूट फाइनेंस देखो आज ही आया, दिस वाज द कंफर्मेशन ऑफ द कैंडल, जो फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है उसमें मुझे 100% बेट है। आज के दिन पे फ्रेश ब्रेकआउट मिला, कैंडल कंफर्मेशन, स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव सुपर ट्रेंड, इवन हिस्टोग्राम इज फॉर्मिंग ऑन द बुलिश साइड, ये कैंडल पे पोजीशन बनेगी किसके हाई पे 1092 पे, 1092 के ऊपर पोजीशन बनाओगे आप और 1126 का टॉप मारा, 26 प्लस 8 34, 34 में से मोटा मोटा 15-20 पॉइंट की भी रैली लेकर निकलते हो तो 375 का लॉट साइज कैलकुलेट कर लीजिए, 6 से 7 हजार का प्रॉफिट ऑन अ सिंगल लॉट। अनदर स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स आए हैं, देखो भारतीय एयरटेल पहले कैंडल पर ये आया, अब ये कैंडल देख के मुझे दिख गया ओपन लो सेम है, आंख बंद करके ट्रेड करूंगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ ओपन लो 822 का स्टॉप लॉस, 829 पे आपकी पोजीशन बैठेगी, फ्रॉम 829 टू 838.75, 9 से 10 पॉइंट की रैली मिली, 10 में से मैं 5 पॉइंट भी बुक करके निकलता हूं तो 950 का लॉट साइज है, मोटा मोटा 5 से 6 हजार रुपया एक लॉट पे निकलता है। क्रॉम्पटन अभी पहले से बाइंग में था, वन साइडेड भागा, आप देख सकते हो 358 का स्टॉक 370 हो गया। मैकडॉवेल देखो अगेन वहां पे भी दिखाया था, अगेन इट इज कमिंग इन द टिक क्वेरी, दिस वाज द कंफर्मेशन कैंडल 885, अभी एक्सप्लेन किया था 885 से स्टॉक्स ने 908 का हाई मार्केट। सो दिस इज द वे जो आपको दोनों तरफ कंफर्मेशन दे रहा है ट्रेंड का। अपोलो अपोलो हॉस्पिटल ऑलरेडी बाइंग यहाँ पर आया था 4389 पे, फ्रॉम 4389 स्टॉक हैज वेंट टू 4629, दिस इज द वे ऑफ कैचिंग द कंप्लीट ट्रेंड। देखो ये होता है सेटअप, 4389 पर स्टॉक स्पीक होकर आया, 300 पॉइंट की रैली विद इन अ 2 डेज, दिस इज द वे हाउ यू मेक मनी। You have to completely believe on your setup, stick with your setup until or unless it is not giving a confirmation, आप होल्ड करके चलो, बट सेटअप बनाने को उतना टाइम लगता है, आपके सेटअप पे बिलीव करना इज द डिफरेंट थिंग, बट वो सेटअप उतना दमदार भी होना चाहिए। So this setup has taken that much of time on the multiple analysis on the back. After doing lots of back testing, we have came up with this setup which is giving the very good accuracy in the live market. सी एच एल आया, अब यहाँ पे सेल आ गया था, क्राइटेरिया के हिसाब से सेल बनता है। देखो हिस्टोग्राम नेगेटिव है, व्हाइट कैंडल फॉर्म हो रहा है, स्टॉक सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है, बट क्या इसका बॉटम ब्रेक हुआ? अगर बॉटम ब्रेक होता तो मैं डेफिनेटली सेल का ट्रिगर पोजीशन बना था, बट बॉटम ब्रेक नहीं हुआ, इमीडिएटली उसने बाइंग इंडिकेट करके दिया जो कि ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद टारगेट बहुत छोटा था, आप देख सकते हो, पहली बात तो 2500 के प्राइस पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओआई बिल्डअप हो रहा है, 6.5 लाख का कॉल साइड ओआई है एंड 1.9 लाख का पुट साइड ओआई है, साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड इज द बुलिश ओनली बिकॉज 5 लाख मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ओआई बिल्डअप है कॉल साइड में एज कम्पेयर टू पुट। जैसे ही सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट मिलेगा वी आर गोइंग टू गेट अपवर्ड रैली ओनली। आप देख सकते हो वहां पे उसने सताया, जैसे ही सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया वन साइडेड अप। सो दिस इज द वे हाउ टू पिक द स्टॉक। हिंद कॉपर ऑलरेडी बाइंग में है, वन साइडेड अप मूव जा ही रहा है, सी
बाइंग आया, वन साइडेड अप मूव जा रहा है। गुजरात गैस लिमिटेड अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, एमआरएफ। सी पहला कैंडल बहुत बड़ा बना, तो मैंने अभी आपको बोला व्हेनेवर द फर्स्ट कैंडल इज गेटिंग फॉर्म विद अ लॉन्ग बॉडी, यू डोंट हैव टू एंटर इन दोस पर्टिकुलर ट्रेड्स। बट फिर भी पैसा बना के दिया उसने। दीपक नाइट्रेट देखो कल इंडिकेट होकर आ गया था, 2147 पर बाइंग आ गई थी। 2147 का ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है, सुबह सुबह ब्रेकआउट मिला पहले कैंडल पर ही, फ्रॉम 2147 स्टॉक हैज मेड अ हाई ऑफ 22101। दिस इज द वे हाउ यू मेक मनी फ्रॉम 2147 in just almost 2 hours. You have made a almost 50 to 60 points rally. The lot size is 250. So this is the way how to pick the stocks. बाइंग हो गया, सेल साइड भी दिखा दो। जीएनएफसी इज द स्टॉक विच इज कमिंग कंटिन्यूअसली, ऑलरेडी सेलिंग में है, पर्सनली पोजीशंस बनी हुई है। सी ये बाइंग साइड बना था बट उसका ब्रेकआउट नहीं मिला, सेल सिग्नल मिला, सेल का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वी विल एंटर इन द पोजीशंस बिकॉज ऑल द क्राइटेरियाज आर गेटिंग इट। सेल साइड में हिस्टोग्राम है, सुपर ट्रेंड के नीचे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 705 से 580 3 दिन के अंदर अंदर। दिस इज द वे हाउ यू मेक मनी। 705 से 580, 120 से 125 पॉइंट की रैली, 1300 का लॉट साइज कौन दे सकता है? पेड चैनल, चैलेंज करता हूं कोई नहीं दे पाएगा ना, मैं खुद दे सकता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का सेटअप आपको दे सकता है, बिकॉज नो वन इज अवेयर कि वो कहां तक जाएगा, बॉटम कितना मारेगा। आपको आपके सेटअप के हिसाब डिसिप्लिन बनाना है और उसी के हिसाब से ट्रेड करना है, देन ओनली यू कैन एबल टू अचीव दिस मच रिटर्न्स इन द मार्केट। अनदर स्टॉक्स कैन बैंक, सॉरी सेल साइड बता रहा था, बजाज फिनांस। बजाज फिनांस साइडवेज था, रिजल्ट पूरे दिन में रैली नहीं आई, क्लोजिंग पर 3:15 आई, कोई काम की नहीं। एचडीएफसी लाइफ, सी सेल आया था क्लोजिंग पर कल के दिन पर, आज ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होके पूरे दिन नीचे चला। जुबिलेंट फूड साइडवेज था, कोई इंडिकेशन नहीं आया, इंडिकेशन नहीं आया तो ट्रेड नहीं करना है। कोल इंडिया देखो कल के दिन पर यहाँ पे सेल आया था, सेल आने के बाद पूरे दिन नीचे चला, आज गैप डाउन, पूरे दिन नीचे। दिस इज द वे। आपको गैप डाउन होने के बाद आज लोगों को मालूम पड़ा कि कोल इंडिया 5.5% नीचे है, XYZ चीज हो रही है। सेटअप ने पहले ही कल के दिन के टॉप पे इंडिकेट करके दे दिया था कि कोल इंडिया गिरने वाला है, और वहां से वन साइडेड रैली क्रिएट होकर रही है। सो दिस इज द वे ऑफ कैचिंग द क्वालिटी ट्रेड्स इन द लाइव मार्केट। स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको टिक क्वेरी एंड बाकी के 3 फीचर्स बहुत एडवांस लेवल पर हेल्प करेंगे। अब ये सब हो गया, बट द पीपल हु आर फोकसिंग ऑन ऑल 5000 स्टॉक्स, 5000 स्टॉक्स में ये क्राइटेरिया करंट कैंडल पर कहां पे मैच हो रहा है, ये एनालिसिस करने के लिए क्या करोगे? बाकी सॉफ्टवेयर में क्या करोगे, एक एक चार्ट, पहली बात तो ये स्कैनर ही नहीं मिलेगा, दूसरी चीज ये जो क्राइटेरिया है वो सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल भी नहीं है। बट इसको क्या इंडिविजुअली लगा लगा के एक एक चार्ट पे मैं चेंज करूंगा, जैसे मुझे देखना है कि यूपीएल में क्या हुआ तो मैंने यूपीएल पे लगाया, ठीक है, यूपीएल में डेली कैंडल पर ये ठीक है। अब मुझे देखना है कि एबीबी में क्या हो रहा है, एबीबी लगाया, एबीबी पे देखा। इस तरीके से क्या मैं इंडिविजुअली चार्ट चेंज करते रहूंगा और देखते रहूंगा? नहीं, वी नीड सम स्कैनर विच कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जिसमें करंट कैंडल पर ये पूरा गेम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका स्कैनर लगाना है, उस स्कैनर में आपको दिखाता हूँ। See, this is the scanner which is going to help us to identify the stocks. अब ये स्कैनर मैं FNO की स्क्रिप्ट पे लगा के रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 198 स्क्रिप्ट में से नॉट इवन अ सिंगल स्क्रिप्ट इज देयर ऑन विच द कंडीशंस हैज बीन मेट। एक सिंगल स्क्रिप्ट में मीट नहीं हो रहा। कल के कैंडल पे किसी में मीट हुआ क्या? तो देखो कल के कैंडल में सिर्फ सन टीवी इज द स्टॉक जिसमें ये क्राइटेरिया मैच हुआ था डेली कैंडल के बेसिस पे, जिसमें सेल आया था। देखो सन टीवी पर सेल आया, आप देख सकते हो क्या मूवमेंट दिया, 544 से लेके 495। दिस इज द मूवमेंट। मैं पर्सनली वेट भी नहीं करता हूँ ये ब्रेकआउट का, आप फ्रेशर हो इसलिए मैं ब्रेकआउट्स के
ब्रेकआउट्स के बेसिस पे ट्रेड करने बोल रहा हूँ। जब 10 दिन आप ये क्राइटेरिया यूज कर लोगे, कॉन्सेप्ट आप यूज कर लोगे, स्ट्रेटजीज पर आपका हाथ बैठ जाएगा, आप खुद इमीडिएटली ट्रेड बिठाना स्टार्ट करोगे। और ऐसे कैंडल पे तो मैं आंख बंद करके ट्रेड बिठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन हाई भी सेम है। सो दैट इज ऑल्सो गिविंग अस अ कंफर्मेशन ऑफ द डाउन साइड रैली। अब ये सब के साथ साथ ये स्कैनर भी मैंने आपको दे दिया, जो आपको ऑटोमेटिक पिक करके देगा कि कौन से साइड में गेम हो रहा है। दो कैंडल पहले देखें तो दो कैंडल पहले देखो, गोदरेज प्रॉपर्टी में बाइंग आया था, आप देख सकते हो, दिस वाज द कैंडल। 1240 से स्टॉक ने 1320 मार दिया। नौकरी वाज द स्टॉक विच हैज केम फॉर द बाइंग साइड। 3900 से स्टॉक ने 4400, 2 दिन में 500 पॉइंट की रैली कोई नहीं देता। So this is the way of catching particular stocks on complete segment। अब इसी को अगर आप पूरे एनएससी पे देखना चाहो तो ये पूरा एनएससी लगा दिया। अब मैं पूरे एनएससी पे रन कर रहा हूँ। सो यू कैन सी पूरे एनएससी में 3000 स्टॉक्स में जो स्टॉक्स में ट्रेड होते हैं, वो स्टॉक्स में से ये आपको स्कैन करके देगा। सो यू कैन सी आउट ऑफ द 3000 स्टॉक, these are the only 14 scripts on which our criterias are getting met, and out of the 14 scripts, these are the only 2 scripts जिसमें क्या हो रहा है, सेल मैच हो रहा है। ओमेक्स ऑटो सेल आया, आप देख सकते हो 66 का स्टॉक 60 रुपए, 58 का बॉटम मार के दिया, विच इज मोर देन इनफ। ऑन द अनदर साइड पेन कार्बन नॉन वॉल्यूम स्क्रिप्ट से, बट सेल आने के बाद आप देख सकते हो 235 का सामान 225, और मैं 10 पॉइंट की रैली क्रिएट करके दी उसने आपको। अगर आप बाइंग साइड में देखो तो गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो बाइंग साइड में आई थी, वन साइडेड बुलिश ट्रेंड करके दी। नौकरी आई जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इन्वेस्ट आया बुलिश ट्रेंड करके दिया, एमएमटीसी आया, लुमैक्स इंडिया आया। सी ब्रेकआउट्स आप देखो क्या सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट्स दिए हैं। ये तो नॉन वॉल्यूम कैंडल है। So we have to make the positions only in the stocks जिसमें क्वांटिटी वॉल्यूम हो रही हो, जिसमें सपोर्ट मिल रहा हो और ट्रेंड कंफर्मेशन मिल रहा हो, वो स्क्रिप्ट्स आपको इजीली अच्छी खासी मूवमेंट कैच करके देगी। तो ऑलवेज यू हैव टू स्टिक विद द सेगमेंट जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी फ्यूचर स्क्रिप्ट्स, वो स्क्रिप्ट्स में कभी भी आप काम करें। सो इस तरीके से आपको सारी चीजें आइडेंटिफाई होगी। अब नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस पार्ट, because options is the most important thing on which people used to focus and used to believe कि यहाँ से मुझे इजीली पैसा बन सकता है। तो ऑप्शंस में लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शंस में लोग मल्टीपल चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में कि कौन से स्क्रिप्ट्स पकड़ू, कौन से स्क्रिप्ट्स में पोजीशंस बनाऊं, कौन से स्क्रिप्ट्स में मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस पर पोजीशंस बनानी चाहिए, कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे मुझे प्राइस के साथ साथ ओआई बिल्डअप होकर अच्छा खासा पैसा बनाने मिलेगा। सो दिस आर द मल्टीपल क्वेश्चंस व्हिच आर गेटिंग अराइज्ड इन द रिटेलर्स माइंड टू मेक द गुड मनी। और उस क्वेश्चंस में वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि राइट स्टॉक्स पिक नहीं कर पाता और गलत पोजीशंस बना के लॉस में खड़ा हो जाता है। सो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर है जो आपको ऑटोमेटिकली ये एनालिसिस करके देता है कि आउट ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट विच आर द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है। अब ध्यान देना, जो भी स्टॉक्स आज के दिन में चले, जैसे कि दीपक नाइट्रेट ले लो इंट्राडे पर, या फिर अच्छे स्टॉक अगर बोलूं तो मैकडॉवेल ले लो। अब मैकडॉवेल में वन साइडेड मूव आया, बट हमको पता ही नहीं वो कहां तक जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं मैकडॉवेल का कॉल में पोजीशन बनाता, क्योंकि बाइंग साइड इंडिकेट होकर आया है 880 का कॉल, आप देखो लाइव दिखाता हूं आपको मैं। सी ध्यान से देखना, मैकडॉवेल यहाँ पे बाइंग साइड इंडिकेट होकर आ गया, मुझे साफ साफ दिख रहा है, मेरा काम एकदम सिंपल हो गया, मुझे साफ दिख रहा है मैकडॉवेल बाइंग बोल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली डिफाइन हो गया है, टारगेट डिफाइन हो गया है, साफ साफ दिखा रहा है कि मार्केट एक बार फटा तो 900 तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर जाए ना जाए 900 100% जाएगा, मतलब जाएगा। क्यों जाएगा, क्यों जाएगा उसका जवाब भी आपको चार्ट पे ही दिख रहा है कि 900 के पुट पे 5 लाख ओआई बिल्डअप है, 880 के पुट पे 3.3 लाख का ओआई बिल्डअप है, टोटल टोटल मिला के 8,30,000 का ओआई बिल्डअप है। कौन से साइड में, पुट साइड में 8,30,000 का।
उसी के अपोजिट में कॉल साइड में 900 पे 17 लाख का ओआई बिल्डअप है, 920 पे 6.3 लाख का ओआई बिल्डअप है, हो गया 24 लाख ऑलमोस्ट। 23.3 लाख का ओआई बिल्डअप बुलिश साइड में है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मेरा सेटअप बाइंग बोल रहा है, मेरा पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के मुझे अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो मैं डेफिनेटली 900 के कॉल में पोजीशन बनाऊं या फिर इन द मनी 880 में पोजीशन बनाऊं। मैं आपको दोनों ट्रेड दिखाता हूँ, 880 और 900 के कॉल में पुट में क्या मूवमेंट मिला। यहाँ पे मैंने फंक्शन F5 करके डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट ओपन किया। अब मैं क्या करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, मैकडॉवेल का कॉल 900 का ये लगाया, कंफर्मेशन कितने बजे मिला, 11 बजे। यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल गया 11:30 बजे। 11 बजे मुझे ब्रेकआउट मिलने के बाद ये कैंडल पर मतलब 11:15 पे मैं पोजीशन बनाऊंगा। ऑप्शंस आपको बाद में कंफर्मेशन दे रहा है, इक्विटी ने आपको पहले ही कंफर्मेशन दे दिया। वी विल नॉट वेट फॉर द ऑप्शंस कंफर्मेशन बिकॉज इंडिकेटर्स पे के बेसिस पे ऑप्शंस मार्केट नहीं चलता। ऑप्शंस मार्केट ऑलवेज वर्क्स बेस्ड ऑन द डेल्टा गामा थीटा एंड ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मुझे मेरा सेटअप ने इक्विटी मार्केट में बाइंग बोल दिया है, साफ साफ दिख रहा है कि 900 के कॉल एक्टिव है जहां पे सबसे ज्यादा हुआ है बिल्डअप है। मैं 11:15 बजे ही यहाँ पे 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपए के आसपास पोजीशंस बना के बैठ जाऊंगा। अब यहाँ पे भी आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगा, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका ऑप्शंस मार्केट में नहीं बनेगा, आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इक्विटी मार्केट में बोलेगा कि अनटिल और अनलेस 879 मैकडोवेल तोड़ता नहीं है तब तक मैं स्टॉप लॉस ऑप्शंस मार्केट में एग्जिट नहीं करूंगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जैसे ही इक्विटी में 879 टूटा, आपको ऑप्शंस में पोजीशंस काटनी है। आप देख सकते हो 14 रुपए का सामान 24 रुपए हो गया, 625 का लॉट साइज। तो जो फ्यूचर्स में काम नहीं कर सकते वो इस तरीके से एनालिसिस करके बहुत सिंपल मेथड के साथ ऑप्शंस में स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, ऑप्शंस में पूरी रैली एंजॉय कर सकते हैं। 890 के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें थोड़ा इन द मनी आकर, तो आप देख सकते हो सेम 11:15 का कैंडल आपको दिखा दो, 18 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 31 का टॉप मार रहा है, 30 का क्लोजिंग दे रहा है। So this is the way how to catch the contract of the options. You have to identify कहाँ पे सबसे ज्यादा गेम हो रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पैसा बना के दें। सेम और दिखा दूं, मैकडॉवेल के साथ साथ भारतीय एयरटेल आ रहा था, देखिए अब भारतीय एयरटेल कहाँ तक जाएगा, ये कंफर्मेशन तो मिल गया, पहला टारगेट 830 का। आप देख सकते हो इतना ऑलमोस्ट more than 2 hours it has sustained near to 830 level. What was the reason? So reason यही है कि 830 पे 30 लाख कॉल बिल्डअप हो रहा है, ऑन द अपोजिट साइड 820 पे सिर्फ 11 लाख 11.6 लैक्स पुट साइड ओआई बिल्डअप है और 800 के लेवल पर 13.4 लाख ओआई बिल्डअप है। तो ऑलमोस्ट उसका 2 टाइम्स ओआई बिल्डअप कॉल के साइड में मिल रहा है। ट्रेंड मेरा बुलिश है, साफ साफ मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। मेरा ट्रेड कहां पे बैठ रहा है, 830 पे। मैं एट द मनी में भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ 830 पर भी। सी पहला कैंडल का ब्रेकआउट, यहाँ पे ट्रेड बनेगा आपका 12 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया 15 रुपए का, लॉट साइज है 950 का। पूरे दिन एक बार सिंगल टाइम भी उसने सेल का इंडिकेट नहीं दिया, कंटिन्यूसली इट इज ट्रेडिंग अबाउट द टिक एवरेज विच इज गिविंग अस अ कंफर्मेशन ऑफ द बुलिश ट्रेंड। शॉर्ट इंडिकेशन था, वन साइडेड रैली क्रिएट करके दी। थोड़ा अगर आप इन द मनी अगर यहाँ पर आ जाओ, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, 820 पर आ गए। आप देख सकते हो 18 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आपको बना के दे रहा है 22 रुपए, ऑलमोस्ट मोर देन 20 से 25% का मूव आपने एंजॉय करके दिया। So this is the way of analyzing the open interest. This is the way of catching and making the positions on the buying side for the options market. आपको directly chart पर you just have to identify the stocks which is running on a single direction. ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको पूरा सेटअप दे दिया है जो आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली स्टॉक्स पिक करने में। स्टॉक्स ने कंफर्मेशन दे दिया, ट्रेंड ने कंफर्मेशन दे दिया बुलिश और बेरिश का, उसमें ये आइडेंटिफाई करो कि पूरा गेम कहां पर हो रहा है। पूरा गेम आपको साफ साफ दिख गया, कॉल साइड में हो रहा है, ट्रेंड बुलिश है,
डेफिनेटली ऑप्शंस में एट द मनी इन द मनी में जाके आपको पोजीशन बनानी है। सेम और आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, बाइंग के दे दिए, सेलिंग का एक एग्जांपल देता हूँ। जीएनएफसी कंटिन्यूज आ रहा था, अब जीएनएफसी देखिए 800 पर 10 लाख का हुआ है बिल्डअप है, 720 पर 15 लाख का बिल्डअप है, ठीक है। पुट में 620 पर 3 लाख का बिल्डअप है, 600 पर 4.5 लाख का बिल्डअप। कॉल साइड सबसे ज्यादा हुआ है बिल्डअप है, बट मेरा ट्रेंड क्या बोल रहा है, ट्रेंड इज कंप्लीटली डाउन साइड, साफ साफ इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड क्या है, बेरिश है। मार्केट साफ साफ इंडिकेट कर रहा है नीचे जाएगा, मतलब क्या कर रही है पब्लिक, ऊपर से कंटिन्यूसली ठोक रही है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, साफ इंडिकेट कर रहा है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है मार्केट इज गोइंग ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन। व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली फोकस ऑन द पुट साइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या था 580, 590 600 के कॉन्ट्रैक्ट पे मैं बैठूंगा, आप देख सकते हो। नॉन एक्टिव इतना मूवमेंट नहीं आया है, बट आप देख सकते हो मॉर्निंग से खुलने के बाद 13 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 18 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर ट्रिगर मार कर आया, क्योंकि वॉल्यूम इतना नहीं है। बट इवन वॉल्यूम ना होने के बावजूद आप देख सकते हो स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 5 से 6 पॉइंट की रैली क्रिएट होकर आई है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स में ओपन ऑप्शंस में बाइंग में स्टॉक्स आइडेंटिफाई होकर मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ द ओपन इंटरेस्ट। पूरा गेम कहां पर हो रहा है ये सारी चीजें एनालिसिस करके आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ ऑप्शंस सेलिंग अगर आप करते हो, ऑप्शंस सेलिंग के लिए मैंने आपके लिए पूरा एक क्राइटेरिया फॉर्म किया है, और ऑप्शंस सेलिंग में कैसे पैसा बनाना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। See, the people who are doing options trading on the sell side, जो पोजीशन हैच करते हैं और बड़ा जो एक्सपायरी का पूरा जो वॉलेटिलिटी होती है, एक्सपायरी का पूरा जो गेम होता है उसमें जो मूवमेंट एंजॉय करने पे बिलीव करते हैं, उनको कैसे स्ट्रेंगल एंड शैडल बनाकर पूरा प्रॉफिट लेना है, कैसे मोमेंटम एंजॉय करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले तो एट द मोमेंट इंडेक्स जो भी प्राइस पे चल रहा है, जो भी प्राइस पे इंडेक्स चल रहा है उसका आप क्या करोगे, एट द मनी का स्ट्रेडल ले लोगे, एट द मनी या फिर थोड़ा सा नीचे। मतलब सपोज अगर इंडेक्स चल रहा है 18,300, तो आप 18,250, 18,200, 18,350 का स्ट्रेडल ले लोगे। अगर इंडेक्स चल रहा है 18,400, आप 18,350 का स्ट्रेडल ले लोगे। पहले हम स्ट्रेडल की बात करते हैं, स्ट्रेंगल में हाइड कर देता हूँ। ये मैंने क्या किया, 18,300 का श्रेडल लिया, आप देख सकते हैं। अब 18,300 का श्रेडल जहां पे भी फॉर्म हो रहा है, साफ साफ मुझे एक चीज पर ध्यान देना है, 18,300 का श्रेडल जहां पे भी फॉर्म हुआ, दिस ग्रीन लाइन इज द प्राइस ऑफ द श्रेडल, कॉल प्लस पुट। 18,300 का कॉल भी बेचा, 18,300 का पुट भी बेचा, दोनों बेच के जो प्राइस ऐड करके जो फिगर आ रहा है, दिस ग्रीन लाइन इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ द श्रेडल। सो यू कैन सी 350, यहाँ पे श्रेडल का प्राइस क्या था 337, यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे आपको दिखेगा 337, 333, कंटिन्यूसली इट इज रनिंग इन द सिंगल डायरेक्शन। अब जहां पे भी श्रेडल ये ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करके नीचे की तरफ जाएगा, जहां पे भी श्रेडल ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करके नीचे की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो श्रेडल का प्राइस क्या था 353, 354, राइट। एवरेज क्या है 344, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो 344 इज लोअर देन 353। Now on at this price, Shredder has went below 344. 344 के नीचे निकल गया, श्रेडल का प्राइस जो है वो ब्लू लाइन से नीचे आ गया, एंड इट इज गिवन अ कंफर्मेशन ऑफ द सेल साइड।
कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? तो कभी भी आप देखना, ये जो बार ग्राम है, ये बार ग्राम 60 के नीचे निकलना चाहिए. Bar gram was continuously trading above 60. So whenever it is trading above 60, we don't have to make the position. We have to compulsory make the positions only at the level wherever the bar gram is below 60. बार ग्राम स्ट्रिक्टली 60 के नीचे होना चाहिए. 60 के नीचे बार ग्राम निकला, आप देख सकते हो 60 के नीचे बार ग्राम निकला, उसके साथ साथ श्रेडल इज मूविंग बिलो ब्लू लाइन विच इज गिविंग अस अ कंफर्मेशन. And from the level of 330, stock is continuously, Shredder is continuously making the money. And from 330, today it has came to the 150. Today it has given a closing at the level of 189. यहाँ पर जाकर आप अपनी पोजीशन काट दोगे क्योंकि अगेन बार ग्राम 60 के ऊपर निकल चुका है. हालांकि ये एक्सपायरी परसों ही है, भले ये छोटा मोटा अप मूव करे, बट जिन्होंने एग्जैक्ट टाइम पे पोजीशन बनाई है, जिन्होंने एग्जैक्ट 340 330 पर पोजीशन बनाई है, एक्सपायरी तक मैं आपको बोलूं, एक्सपायरी तक यही जो प्राइस अभी 189 चल रहा है, यही आपको 50 से 60 रुपए के आसपास मिलेगा फॉर श्योर. तो कितना भी मूव आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगेन इट हैज टू वेंट बिलो, क्योंकि टाइम डी के वहां पे आपको मेन पैसा बना के देता है. सो दिस इज द गेम ऑफ द ऑप्शन सेलिंग. यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट जहां पे वो फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है. इसके लिए आपको पहले से ही ये सेट करके रखना पड़ेगा फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में. जैसे कि अभी करंट वीक की एक्सपायरी है, तो आपको नेक्स्ट वीक एंड इवन आफ्टर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स का चार्ट पहले से ही सेट करके रखना है. जहां पे भी फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा है वहां पे आपको पोजिशंस बनाना है. ये ब्रेकआउट मिला, विद दैट स्ट्रिक्टली हिस्टोग्राम इज ट्रेडिंग, हिस्टोग्राम शुड बी ट्रेडिंग बिलो 60. 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको स्ट्रिक्टली पोजीशंस बनानी है. मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और देता हूँ. 18300 दिया, 18350 का दिखाता हूँ. सी 18350 ने यहाँ पे 375 पे सेल दिया था, हम ट्रेड करेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि बार ग्राम 60 के ऊपर है. यहाँ पे bar gram has went below 57 and even histogram is still in the sell side. Strictly we will make the positions near to 360 350 level. 350 के नीचे आप देख सकते हो वन साइडेड डाउनफॉल देखने मिला, एंड कंटिन्यूअसली स्ट्रेडल इज फॉलिंग एंड इट हैज मेड अ बॉटम ऑफ ऑलमोस्ट 140. सो आप देख सकते हो 360 का कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रेक करके 140 पर लाके खड़ा कर दिया है. 240 300 ऑलमोस्ट 220 पॉइंट की रैली. और थर्सडे तक आप देख लेना चाहिए, तो फॉलो कर लो. श्रेडल है कितने का? 18,350 का. थर्सडे को आपको यही श्रेडल जो अभी 160 पे 150 पे चल रहा है, वही आपको 40 50 60 रुपए पर नजर आएगा. मतलब मोटा मोटा 100 पॉइंट की रैली और नीचे में आपको क्रिएट करके दे देगा. दिस इज द कंप्लीट गेम ऑफ द टाइम डिके. ये बार ग्राम के बेसिस पे आपको पूरा टाइम डिके की बेनिफिट एंजॉय करने मिलती है. बार ग्राम ने कंफर्मेशन दिया, वहां पे आपको इमीडिएटली पोजीशंस बना के बैठ जाना है, वहां पे आपको पूरी रैली एंजॉय करने मिलेगी. ये श्रेडल हो गया. सेम वे में हमको, मैं आपको दिखा दूं, सेम वे में हमको स्ट्रैंगल भी फॉलो करना है. ध्यान देना, बेसिकली जिसको स्ट्रैंगल श्रेडल क्या होता है ये सब नहीं पता, तो उसके लिए सीखने की भी जरूरत नहीं. आप सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट अगर इंडिकेटर्स लगाते हो तो आपको ऑप्शंस में जाना है. जैसे नो वन इज अवेयर के शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है. सो यू जस्ट क्लिक ऑन द शॉर्ट स्ट्रैंगल, गो टू द पैरामीटर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उस पर आप क्लिक रखो. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है व्हाट इज शॉर्ट स्ट्रैंगल. सो यू कैन सी in short strangle you have to sell the lower strike put, and even with the lower strike put you have to sell the higher strike call. दोनों को आपको एक साथ सेल करना है, and it should be of the same expiry. This is the short strangle. या positions कैसे बनानी है? So again the concept is same. See, दोनों की पोजीशंस को ऐड करके आपको एक प्राइस जनरेट होकर आता है. wherever this green line is crossing the another line, you will get a confirmation, but with that again the bar gram should cross the 60 line downward. See, this is the price where green line has crossed the another line, but bar gram was trading above 60, so we will not make the positions. On the immediate next candle you can see bar gram is moving below 50, below 60. जैसे ही उसने 60 के नीचे क्रॉस ओवर किया एंड
स्ट्रेंगल भी हमारा नेगेटिव है, वी आर गेटिंग अ कंफर्मेशन, डेफिनेटली वी विल मेक द पोजीशंस ऑन दिस लेवल. व्हाट इज द प्राइस? यू कैन सी 170 पर ट्रेड कर रहा था. फ्रॉम 170 कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग डाउनवर्ड एंड टुडे द प्राइस इज 47. थर्सडे तक वेट कर लो, आपको इस जीरो पे मिलेगा. लिख के ले लो, आप अभी भी पोजीशन बना सकते हो. थर्सडे को आपको इसकी वैल्यू 0, 2 रुपए, 5 रुपए पर मिलेगी. अभी भी 40 से 45 पॉइंट की रैली डेफिनेटली आप एंजॉय कर सकते हो. एक दो एग्जांपल्स और देता हूं मैं आपको स्ट्रैंगल में, बिकॉज ऑप्शंस बहुत वास्ट टॉपिक है. जब आप सेलिंग पर आते हो, बाइंग के लिए तो मैंने जो आपको सेटअप बोला है स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करो, यू विल मेक द गुड रिटर्न. ऑप्शन सेलिंग बहुत वास्ट टॉपिक है. इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन यू द कंप्लीट ऑप्शन सेलिंग विद इन 15 to 20 minutes, 1 hour, 2 hours. Impossible. For that you have to sit with the technical analyst for continuous 10 days, 15 days, 20 days, 1 month, 2 months, until or unless you are not understanding the complete logic. अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ. तो अगेन मैं एक दो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके बताता हूँ. पहले मैंने क्या लिया, 1800 का पुट लिया और 18500 का कॉल लिया. अब क्या करते हैं, 18200 का पुट लेता हूं मैं और 18600 का कॉल लेता हूं, क्योंकि 500 एकदम नियर बाय हो गया. सी 18600, 18500 लिया. अगेन वी हैव गॉट अ कंफर्मेशन, बट यहाँ पे क्या हो गया, प्रीमियम थोड़ा हमको हेल्दी मिल गया. पहले हमने 150 पे शॉर्ट किया था, नाउ वी आर गेटिंग अ प्रीमियम ऑलमोस्ट अराउंड 225, 220. सी और यहाँ पे इंडिकेशन आ गया था, बट हमारा बार ग्राम 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा. वी विल मेक द पोजीशन ऑन द लास्ट कैंडल ऑफ दोस डे. यू कैन सी ऑलमोस्ट 220 पर मेरी पोजीशन बन रही है, क्योंकि लास्ट कैंडल पर बार ग्राम क्या है, 60 के नीचे निकल रहा है. तो 220 के नियर बाय मेरी पोजीशन बन रही है, एंड फ्रॉम 220 स्टॉक हैज मेड अ बॉटम ऑफ 26. आप क्या मूवमेंट आपको एंजॉय मिल रहा है वो देखिए. ये 26 का डेफिनेटली जीरो हो जाएगा थर्सडे को. आप अभी भी पोजीशन बना सकते हैं विद अ ह्यूज क्वांटिटी. ऑप्शन सेलर यही करता है. ऑप्शन सेलर ये ढूंढता है कि कहाँ पे मैक्सिमम गेम हो रहा है और कहाँ पे मैं पैसा बना के अच्छा टाइम डीके का बेनिफिट उठा के पूरा प्रॉफिट खा सकता हूँ. सो दिस इज द वे ऑफ जनरेटिंग मनी फ्रॉम द ऑप्शन सेलिंग. इसका बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है. आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, आप जब एडवांस चीजें सीखोगे, उसमें स्टेप टू स्टेप्स और भी इन डेप्थ आपको सिखाया जाएगा. सो द ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको स्ट्रिक्टली ये दो क्राइटेरिया यूज करने हैं जो मैंने आपको दिया है. यू हैव टू कंप्लीटली फोकस ऑन द बार ग्राम वेर एवर यू आर गेटिंग अ कंफर्मेशन of the bar gram. Whenever bar gram is moving below 60, you have to make the position strictly. जो आपका स्ट्रेंगल एंड स्ट्रैडल है वो अपोजिट लाइंस के नीचे ट्रेड करना चाहिए, एंड स्ट्रिक्टली हमको ये सेलिंग के लिए ही फॉलो करना है. एंड ऑन द अदर हैंड फॉर इक्विटी एज वेल एज डेरिवेटिव फ्यूचर मार्केट, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द कॉन्सेप्ट विच आई हैव शेयर्ड विद यू. उसको आप स्ट्रिक्टली यूज करो. कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन डायरेक्टली गिव मी अ कॉल ऑन दिस नंबर. You can reach us on 7304414242 and even on 7304414243. Thank you.